वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी और हमारी चैनल बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स में। वेलकम टू बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स, अ चैनल डेडिकेट टू एडुकेट योरसेल्फ अबाउट द स्टॉक मार्केट सो दैट यू हैव नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स, ताकि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े और आप खुद आपकी काम खुद कर सको कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, इसमें समय लगता है, लेकिन शुरुआत तो करना होगा कहीं पे, इसलिए पहले सीखना पड़ेगा। एज इन द बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स फैमिली, वी बिलीव that learning is earning. In our last two videos, we have spoken about the futures market in details, about lot size, about expiry, MTM यानी mark to market, and about premium or discount. In another video of the same series, we have talked in details about Nifty and Bank Nifty futures, how to make profits in both the ways in a bullish market when the market is rising and in the bearish market when the market is falling. Here in this video, we will begin a new series rather, of videos starting from this one about another section in the derivative market, which is about options. हाँ, आपने सही सुना। फ्यूचर्स मार्केट के अलावा डेरिवेटिव मार्केट में और एक सेक्शन होता है जो कि होता है ऑप्शंस. As the derivative section is called F and O, which is F is for futures and O is for options. So today we will begin with a 14 series video on options. हम आज से एक 14 वीडियो का सीरीज लेके आएंगे, जिसका आज पहला वीडियो होगा और वो होगा on the options. So do not skip and watch, as it will be very informative, and if you skip, नुकसान आपका होगा, क्योंकि समझदार इंसान कभी नुकसान नहीं करते हैं when they are in process of learning and watching educative videos to prepare themselves and make themselves capable for the markets in the near future. प्लीज डू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है ये वीडियो बनाने के लिए. आपकी एक लाइक हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को, and we get a lot of motivation and inspiration. Do share the video with like-minded people who are interested in the stock market and जो सीखना चाहता है and like to begin their journey in the stock market without speculating or gambling, but by proper learning. If you have any doubts, do comment in the comment section. We will revert back as soon as possible. So, friends, let's start with this new section of the futures market, or rather the F&O market, with the new segment called options, which is the most likable and favorable derivative section nowadays. About possibly 85 to 90% of trades in the Indian stock market comes from options trading. So let's dive in, friends. Pay attention, and boom, here we go to learn about the options. The derivative section, popularly known as F&O, is made up of two instruments mainly, the futures segment and the option segment. Today we will begin with the first part of the 14-part series on option. So let's dive in, friends. Let's start with the basics of options. तो ऑप्शंस कौन से होते हैं और वो देखते हैं कैसे. ऑप्शंस आर मेनली बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. ऑप्शंस होते हैं दो प्रकार के, एक है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन. व्हेन यू थिंक दैट द मार्केट आर बुलिश और ऊपर की तरफ भागने वाले हैं, तो आप बाय करते हो कॉल ऑप्शंस का. सो ऑन अ बुलिश सिनेरियो, व्हेन यू थिंक मार्केट्स आर गोइंग टू राइज एंड गो अप, यू बाय कॉल ऑप्शंस. क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब है कि आप समझते हैं कि मार्केट चढ़ेगा और ऊपर जाएगा, और ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में आप मुनाफा कमाएंगे.
और जब कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है, यानी कि मार्केट इज बियरिश एंड इज गोइंग टू फॉल, सो यू विल बाई पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन बाई करने का क्यों है कि मतलब क्या होता है कि पुट ऑप्शन बाई करने का मतलब है कि आप एग्जैक्टली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है और मंदी की मार्केट में भारी मात्रा में मंदी आने वाला है और मंदी की मार्केट में आप पैसा कमाओगे। So in a nutshell, when you think the markets are going to rise, कि market ऊपर जाने वाला है, you have to buy call options, and when you think that the market will fall और ये नीचे की तरफ गिरने वाला है और मंदी आने वाला है, you will buy put options. So this is the basic concept. There are two types of options, call and put options. ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे और नीचे गिरते हुए मार्केट में आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि सोच लीजिए हमने कुछ एनालिसिस किया, स्टडी किया और मुझे लगता है कि रिलायंस जो स्टॉक होता है ऊपर की तरफ भागने वाला है और ये रिलायंस जो तेजी में आएगा उसमें मुझे पैसा कमाना है, तो मैं कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन, क्योंकि इन अ बुलिश सिनेरियो वी हैव टू बाय कॉल ऑप्शंस एज आई सेड अर्लियर। और मुझे लगता है कि इन्फोसिस जो कि एक आईटी स्टॉक है वो गिरने वाला है आफ्टर सम रिसर्च एंड स्टडी एंड एनालिसिस, और मैं नीचे गिरने वाले इन्फोसिस में पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मुझे हमें कौन सा ऑप्शन खरीदना है? हाँ बिल्कुल सही, पुट ऑप्शंस एज द सेंटिमेंट इज बियरिश। अब ये ऑप्शंस मिलता है कहाँ और पुट ऑप्शन मिलता कहाँ है, इस पे हम धीरे धीरे आएंगे। अभी हम आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तेजी के लिए कॉल ऑप्शन और मंदी के लिए पुट ऑप्शन खरीदना है। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। जब कोई बोलता है कि मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा हूं, तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक और द मार्केट्स विल मूव अपवर्ड्स टू अ पर्टिकुलर लेवल, कि स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा। तो मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो है उस स्टॉक के ऊपर या मार्केट के ऊपर मैं बुलिश हूँ। और अगर कोई कहता है कि मैं तो भाई आज पुट ऑप्शन खरीदने वाला हूं, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट विल बी बियरिश और वो नीचे की तरफ जाने वाला है या गिरने वाला है, और इन्फ्लुएंस ये निकल के आता है कि आई एम बियरिश अबाउट द मार्केट। सो इन अ बुलिश मार्केट और तेजी की मार्केट में आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, और इन अ बियरिश मार्केट और मंदी की मार्केट में आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। I hope this is clear to everyone by now. It's very simple. इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको समझना पाने का, आप समझ जाएंगे होंगे। जब आप इंडियन मार्केट्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कॉल ऑप्शंस को सी किसे के साथ डिनोट किया जाता है और पुट ऑप्शंस को पी के साथ डिनोट किया जाता है। मतलब कि कॉल ऑप्शंस को बोला जाता है सी और पुट ऑप्शंस को बोला जाता है पी। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पुट ऑप्शंस का पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। पूरे विश्व में जहां भी ट्रेडिंग होता है ऑप्शंस का, दो तरह का ऑप्शंस होता है, एक है अमेरिकन ऑप्शंस और एक है यूरोपियन ऑप्शंस। हमारे देश भारत में सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस को यूज किया जाता है। तो जब आप इंडियन मार्केट्स में ऑप्शंस ट्रेड करेंगे तो आपको वो कॉल ऑप्शन के लिए सी यानी कॉल यूरोपियन और पी मतलब पुट यूरोपियन दिखेगा। अब किसी के मन में ये सवाल हो सकता है कि हमारे देश में अमेरिकन ऑप्शंस क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्यों यूरोपियन ऑप्शंस यूज होता है? इसका जवाब हमारे पास सच में नहीं है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, और इसका जवाब मैं आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा या एक्सचेंजेस को पूछना पड़ेगा या सभी से पूछना पड़ेगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट भी चीज नहीं है, तो ये चीज इतना जरूरी नहीं है, उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर क्यों यूरोपियन ऑप्शंस यूज होता है और क्यों अमेरिकन ऑप्शंस यूज नहीं होता है। सो आई गेट टू गेट द बेसिक ऑफ कॉल ऑप्शन और सी एंड पुट ऑप्शन या पी। सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। चलिए और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस में और तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Three things are very important in options. They are number one, the strike price,
number 2 option premium, and number 3 expiry. So let's start with strike price. Strike price से हम शुरू करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, which is the most important thing in options trading. अगर आप options trading कर रहे हो और आपको strike price के बारे में पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, तो आप ऑप्शंस में कभी प्रॉफिट या मुनाफा नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे खेल स्ट्राइक प्राइस में होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शंस. इसको समझने की कोशिश करते हैं. इन एवरी ऑप्शंस लाइक स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस लाइक द निफ्टी और द बैंक निफ्टी ऑप्शंस, देयर आर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस. मानो कि मार्केट 100 रुपए ऊपर चला गया और आपके कॉल ऑप्शन हमेशा बढ़ेगा, और अगर आपने सी या कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आप मार्केट से प्रॉफिट या मुनाफा कमा पाओगे, पर ये कितना बढ़ेगा और ये आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है. सो इसके लिए वी हैव टू ओपन द ऑप्शन चेन. ये ऑप्शन चेन के बारे में हम डिटेल्स में एक वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको क्लैरिटी और ज्यादा आएगा. अब थोड़ा बेसिक समझते हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस समझने के लिए ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So at the moment let's open the Nifty option chain, जो कि Nifty इंडेक्स का ऑप्शन चेन है. इसमें 2 कॉलम होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड जिसमें कि कॉल ऑप्शंस के सारे स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, और ऑन द राइट हैंड साइड द पुट ऑप्शंस के सारे स्ट्राइक प्राइस रहते हैं. अब एक चीज कॉमन है इस पूरा ऑप्शन चेन में. कैन एनीवन टेल व्हाट इज द कॉमन थिंग इन द फुल ऑप्शन चेन ऑन द कॉल साइड एंड द on the right hand side and the put side on the left hand side? Yeah, you are right. The most common thing in both the right and left side, which right side denotes the call side and the put side denotes the left side denotes the put side, उसमें एक चीज कॉमन होता है जो कि strike price, which is the most important thing in options trading, as I said earlier. Let's take the example of Nifty options. Suppose Nifty is trading at 16,000, पर इसका बहुत सारे strike price होता है. If in Nifty हर 50 पॉइंट में, in every 50 points पे एक strike price होता है. अब ऐसा क्यों? निफ्टी का करंट प्राइस मान लो है 16,000, तो ऊपर की तरफ इतना सारा स्ट्राइक प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 16,050, 16,100, 16,150, 16,200, 16,250 एंड सो ऑन. और नीचे की तरफ भी इतने सारे स्ट्राइक प्राइस होता है, लाइक 15,950, 15,900, 15,850, 15,800, 15,750 एंड सो ऑन. हर 50 पॉइंट के नीचे और हर 50 पॉइंट के ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस होता है एंड सो ऑन. निफ्टी तो 60,000 पे ट्रेड कर रहा है, पर इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 5 रुपए से शुरू होके 4,000 रुपए तक होता है. इतना सारा स्ट्राइक प्राइस है. आपने देखी, कभी आपने सोचा है कि स्टॉक या इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसका भाव तो एक ही होता है, तो जितने सारे स्ट्राइक प्राइस क्यों होता है? और इस पॉइंट पे गौर फरमाने वाली की बात है कि निफ्टी का प्राइस जो 16,000 पे है, पर इतने सारे स्ट्राइक प्राइस क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि इसके बारे में? तो आइए ये लॉजिक आप लोगों को समझना है, और लेट्स क्लियर द लॉजिक कि ऊपर की तरफ हर 50 पॉइंट में इतने सारे स्ट्राइक प्राइस और नीचे की तरफ भी हर 50 पॉइंट में इतने सारे स्ट्राइक प्राइस, स्पेशली निफ्टी के बात कर रहा हूं मैं, क्यों होता है? इसको चलिए समझते हैं. सो एवरीवन, अब आप भूल जाओ कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, स्टॉक मार्केट, इसके बारे में भूल जाओ. हम एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल और एक लैंग्वेज, एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको ये स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे. और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना. आप लोग कभी रेस कोर्स गए हो जहां घोड़े दौड़ते हैं? हमारे यहाँ कोलकाता में बढ़िया रेस कोर्स है, फिर मुंबई, पुणे, बैंगलोर में है बढ़िया रेस कोर्सेस, चेन्नई, हैदराबाद, वहाँ पे भी बहुत जगह है जहाँ पे रेस कोर्स होता है. अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के साथ ये स्ट्राइक प्राइस बताने वाला हूँ,
और ये लाइव एग्जांपल सुनने के बाद आपको स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्यों इतने स्ट्राइक प्राइस होता है हर एक स्टॉक में या निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में। आपने तो फिल्मों में रेस कोर्स का सीन तो देखा ही होगा। बहुत सारी फिल्मों में ये रेस कोर्स का सीन होता है। उसमें क्या दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरो होता है वो महंगी गाड़ी में रेस कोर्स में आता है, उसके साथ एक असिस्टेंट रहता है और वो हीरो और उसके असिस्टेंट को अंदर जाता है और वो हीरो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस घोड़े पे 10,000 रुपए 10 लाख रुपए लगा दो। तो वो घोड़ा रेस जीत जाता है और सोचो घोड़े का नाम है थंडरबोल्ट। वो घोड़ा लास्ट मिनट में रेस जीत जाता है और वो हीरो लाखों रुपए कमा के निकल जाता है। यही दिखाया जाता है फिल्मों की द्वारा कि रेस कोर्स में द्वारा कि हीरो और उसने घोड़े के पैसा लगाया और वो घोड़ा जीत गया और वो बहुत सारे पैसा बना के घर चला गया। अब मुझे ये बताइए कि रेस कोर्स में सिर्फ एक ही प्रकार की बेट पॉसिबल है, कौन सा घोड़ा जीतेगा, और काफी सारी बेट्स पॉसिबल होता है कि नहीं। अब हम बताएंगे कि एक रेस कोर्स में कितने तरह की बेट पॉसिबल है। ध्यान से सुनना। कौन सा घोड़ा जीतेगा ये बेट तो सबको पता है, और कौन से बेट पॉसिबल होता है थोड़ा अब ध्यान लगाना। कौन सा घोड़ा दूसरे आएगा, तीसरे आएगा, चौथे आएगा, या कौन सा घोड़ा 5वें, 6वें, 7वें या 8वें पोजीशन में आएगा, कौन सा 9वें, 10वें, 11, 12वें पोजीशन में आएगा, या कौन से घोड़ा लास्ट आएगा। सारे टाइप्स का बेट पॉसिबल होता है रेस कोर्स में, और जो आपको सही लगता है वो बेट लगा के पैसा कमा सकते हैं। मतलब हारने वाले घोड़े के भी बेट लगते हैं और उसमें भी पैसा कमाया जा सकता है। तो आपको पता चल रहा है कि रेस कोर्स में कितने तरह की बेट्स पॉसिबल होता है। फिल्मों में सिर्फ दिखाया जाता है कि एक ही बेट पॉसिबल होता है, कौन सी घोड़ा जीतेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अनेक प्रकार की बेट्स पॉसिबल है, क्योंकि घोड़ा जीतेगा, कौन सा घोड़ा कौन से पोजीशन पे आएगा, कौन सा लास्ट आएगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। अब मुझे ये बताइए कि इतने सारे बेट्स पॉसिबल होने के लिए उतने सारे घोड़े की भी तो जरूरत है। There should be multiple horses to put multiple bets. अगर पूरे रेस में एक ही घोड़ा दौड़ रहा है तो बेटिंग क्या पॉसिबल है? It's not possible at all. So to bet you need multiple horses. जिस तरह से रेस कोर्स में बेटिंग करने के लिए मल्टीपल हॉर्सेस की जरूरत होता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस की जरूरत होता है। So there should be multiple strike prices in options. ये स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है, ये आपके निफ्टी ऑप्शंस के घोड़े होते हैं, हॉर्सेस होते हैं। कैश मार्केट में आप सिर्फ तेजी कर सकते हो और स्विंग या पोजिशनल में, और मंदी सिर्फ इंट्राडे के लिए है। पोजिशनल और स्विंग में नहीं मुमकिन है कैश मार्केट में मंदी करना। और फ्यूचर्स मार्केट में आप तेजी और मंदी दोनों कर सकते हो। सब लोग को ये पता है, और इन सब के बारे में मैंने अपने प्रीवियस दोनों वीडियोस में बातचीत भी किया है। पर मेरे दोस्तों, ऑप्शंस में आप अनेक प्रकार के ट्रेड ले सकते हो। तेजी का ट्रेड तो ले ही सकते हो, मंदी का ट्रेड भी ले सकते हो, और बहुत तरह की ट्रेड पॉसिबल होता है ऑप्शन मार्केट में कि स्टॉक ऊपर जाएगा लेकिन एक भाव के ऊपर नहीं जाएगा, कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा पर एक भाव के नीचे नहीं जाएगा। फिर अगला ट्रेड होता है कि स्टॉक मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, मतलब साइडवेज रहेगा। सो एवरीवन, हर एक टाइप का ट्रेड का पॉसिबिलिटी है ऑप्शंस में। तो अब बताइए मुझे, कितने सारे ट्रेड्स अगर पॉसिबल है ऑप्शंस में, तो उतने सारे घोड़े भी तो जरूरत है, लाइक इन द रेस कोर्स। तो स्ट्राइक प्राइस और कुछ नहीं है, आपके घोड़े हैं ऑप्शंस की तरह, और आपके अनेक प्रकार का ट्रेड का स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस में ले सकते हैं। इसलिए इतने सारे स्ट्राइक प्राइस होता है ऑप्शंस में। स्ट्रैटेजीज विल बी कवर्ड इन दिस 14 पार्ट सीरीज। आज मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगा। तो फ्रॉम द बेसिक लेवल वी आर स्टार्टिंग। सो एवरीवन, सबको समझ में आया होगा कि स्ट्राइक प्राइस का फंडा क्या होता है, क्यों
स्टॉक प्राइस में इंडिसेस या निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में देयर आर सो मेनी स्ट्राइक प्राइस कि आप मल्टीपल ट्रेड्स लेने का मौका आपको मिले। तो ऑप्शंस मार्केट में आपको इतने सारे ट्रेड्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि बढ़ती हुई मार्केट में कॉल ऑप्शन खरीद के ट्रेड करना, गिरती हुई मार्केट में पुट ऑप्शंस खरीद के बेच कर ट्रेड करना, साइडवेज मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो कैसे करते हैं हम बाद में चर्चा करेंगे, या कोई पुट ऑप्शन लेना लेकिन इस प्राइस के नीचे वो नहीं गिरेगा, और कॉल ऑप्शन लेना कि इस प्राइस के ऊपर वो नहीं जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल ट्रेड्स कैन बी टेकन व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द कैश या फ्यूचर्स मार्केट एंड इट इज ओनली पॉसिबल इन द ऑप्शंस मार्केट। ऑप्शंस मार्केट में बता दूं कि आप साइड बेस मार्केट में भी मतलब रेंज बाउंड मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, जो कि इज नॉट पॉसिबल इन कैश और फ्यूचर्स मार्केट। सो वी टुक द एग्जांपल फ्रॉम कॉमन लाइफ और उसको कोरिलेट किया स्टॉक मार्केट के साथ। होप दिस वाज हेल्पफुल। अब आप स्ट्राइक प्राइस के फंडा कभी नहीं भूलेंगे, ये हम एक्सपेक्ट या आशा कर सकते हैं। सपोज निफ्टी is steadily trading at 16,020। ये कैश मार्केट की भाव बोलता हूँ क्योंकि ऑप्शंस का जो प्राइस या ऑप्शन चेन का जो प्राइस होता है वो कैश मार्केट की बेसिस पे होता है, ना कि फ्यूचर्स के। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,020 पे कैश मार्केट में, और सो विच स्ट्राइक प्राइस इज द मोस्ट नियरेस्ट टू द करंट price of Nifty, which is 16,020. So the most nearer current price will be 16,000 या 16,050 और 15,950। अब बताइए मुझे। तो you can say the strike price nearer to the current price when Nifty is trading at 16,020 is 16,000. It is not 16,050, neither 15,950, because 16,000 is just 20 points below 16,020, which is the closest strike price. If Nifty was trading at 16,028 or 16,030, the closest strike price would have been 16,050. So these strike price जो कि current price से सबसे close होता है in any stock or indices like Nifty or Bank Nifty is called ATM strike price. ATM का मतलब होता है at the money. The left hand side of option chain जिसमें call side का सारा data रहता है, and the right side of the option chain जिसमें put side का सारा data रहता है। So put के लिए भी ये ATM strike होगा 60,000 when Nifty is trading at 16,020. सो दोनों कॉल और पुट के लिए एटीएम यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा 16,000 व्हेन निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 16,020। जो स्ट्राइक प्राइस करेंट मार्केट प्राइस के सबसे करीब होता है उसी स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी और यानी एटीएम स्ट्राइक बोला जाता है। Suppose Nifty is trading at 15,960, let's take an example. So the ATM strike price for both the call option and put option क्या होगा? 19,950 या 16,000? It will be 15,950 ATM strike price for both call and put option, as 15,950 is closer to the current market price, which is 15,968. Suppose Nifty is trading at 16,975. Is trading at 15,975. In this scenario, the current price is exactly between 16,000 and 15,950. In this scenario, you can choose any of the strike price as ATM or at the money strike price for both call and put options. You can choose both as ATM, either you cannot choose both as ATM. दोनों को आप ATM प्राइस चूज नहीं कर सकते हो। अगर 15,975 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आप 15,950 को ATM स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो या 16,000 को ATM प्राइस चूज कर सकते हो। दोनों को आप ATM प्राइस चूज नहीं कर सकते हो। Either 15,950 or 16,000 you have to choose as ATM strike price, not both of them. If you take 15,950 as the ATM or at the money, तो आपके in the money and out of the money अलग अलग होगा।
अगर आप 60,000 को एटीएम मानते हो तो आपका इन द मनी स्ट्राइक प्राइस और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस अलग अलग होगा, which is true for both call and put options. So if suppose Nifty is trading at 16,020, the ATM strike price for both call and put options is 16,000, and for the call option see all strike prices above it, मतलब 16,050, 16,100, 16,150, 16,200, 16,250, 16,500, 17,000, 17,500 and so on will be out of the money strike price or OTM. Out of the strike price का short form है OTM. And all the prices below 16,000 like 15,950, 15,900, 15,850, 15,800, 15,500, 15,000, 14,500 and so on, all will be in the money strike price or ITM. ITM का मतलब होता है in the money stock, in the money strike. And for the put side, just the opposite. All the strike price above 16,000, मतलब 16,000 का ऊपर जितना strike prices है, क्योंकि निफ्टी का पुट साइड में एटीएम है 16,000, उसके ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस है मतलब 16,050, 100, 200, 400, 16,500, 17,000, 17,500, ये सारे होगा इन द मनी और ये यानी कि आईटीएम, और उसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा जैसे कि 15,950, 15,900, 15,850, 15,500, 15,000, 14,500 and so on, it will be the out of the money stock prices or OTM for put options. So for any stock or indices, the price closer to the current price will be the ATM or at the money price. Above it will be out of the money or OTM for call side, and above it will be the ITM for the put side, and exactly the opposite for the call side. The prices below the ATM will be the in the money call side, और ऊपर की तरफ जो पुट साइड के लिए will be the in the money or ITM strike price for the options. So friends, hope this video was very informative. ये वीडियो आपके लिए काफी जानकारी लाया होगा बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के लिए, जिसका 14 पार्ट का सीरीज हम लोगों ने पहली पार्ट से शुरू किया है. In this video, we learned about the basics of options. We started from call options, जिसको भी C बोला जाता है, और put options, जिसको P बोला जाता है. We learned how we can make money when the market rises by buying the call options or CE, and how we can make money by buying the put options, which is called PE. We learned about strike prices, why there are so many strike prices. उसका एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, रेस कोर्स की एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने आपको समझाया. And we learned about ATM, जिसको कि एट द मनी बोला जाता है, OTM जिसको कि आउट ऑफ द मनी बोला जाता है, एंड ITM जिसको कि इन द मनी बोला जाता है, उसके बारे में भी हमने जाना है. In our next video, we will be talking or discussing about ATM, ITM and OTM in details again, with a more clarity on these two terms. And we will talk about option premium. Option premium क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. And we will talk about option expiry. Expiry of options के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. We will talk about options expiry too. So friends, thank you for watching. Stay happy and healthy. Happy trading. See you soon. Very very soon in the part 2 of this 14-part series on options, which will be a bang. So don't miss out friends. Look out for next video. We will be back very soon.